to all my friends is that we will not have your video. So please mute all your video, update your name. Update your name, mute the video. We will, this is like a classroom. You will have to, we will have Dr. Suresh Sharma ji will be on the video. Please keep his video on and all other videos will be off. And one more suggestion is, whenever you have, if you have a question, please make a note of it and keep all the, better to keep the question towards the end. We will have a 5 to 10 minute question answer session. Please make note of all your questions and we'll make a question answer session. And you can keep typing on the chat box, or I think better to make a note and then we will, you can in the chat box in the end, whenever we open out for question answer, you can say in the chat box that I have a question, then we will facilitate your Kiranji, there is a small message that audio is not working in many cases. See, audio, actually, there is no control. I think when you log in, you have to enable audio. Something like that is. I've been noticing some people log in with audio, some people only with video. I personally do not know. You may have to enable audio. Touch your screen, see some options, and there may be something called as enable audio or something like that. Yeah, if you are logging in from laptop, you have to join from computer audio. Or if you're from phone, anyway, you need to. There is one more click required. What is it called? You don't need to do anything. सब साथियों से निवेदन है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ये एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्लासरूम है. सो इसमें डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हमें आइडियोलॉजी के बारे में क्लास करेंगे. वो उनका जो प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे और वो भी बात करेंगे. हम सब लोग ऑडियो और वीडियो म्यूट रखेंगे और जो हमारा जो क्वेश्चंस है या कुछ रिफ्लेक्शंस है, कोई सब आप नोट कीजिए और लास्ट 10 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे. इसमें आपका जो चार्ट बॉक्स है, चार्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें आप एक क्वेश्चन पूछना है. उसके दौरान मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा. Okay? And there is one request to record this session. Yes, perfectly fine for me. Yeah. So host, as host, I think you should. We will. The record. All the sessions are recorded, but we will have the discretion whether to share it or not. Okay, fine. So we will. Start recording the session when Suresh ji starts talking. What I'm trying to say is, the suggestion is okay, but we may not share. That is a different decision that has to be taken up. Okay, so let me know when to start. You can go ahead. Just give me 1 minute. Okay. Good morning, greetings everyone. So this is the first part of the 2-part training session on ideology and also to understand more about Sevadal. Suresh ji has been doing this for all Sevadal state units across the country. So this is actually a scaled down version of that training. Usually the training runs into days, I think 2 days, 3 days, a full day training. So we have
specifically selected some portions that are required for us to understand the ideology and also the functioning of Sevadal. So thank you very much, Suresh ji, for accepting this request on short notice. We are eager to refresh our learning, and it is good to have this at least once or twice a year. This is not completely new learning for any of you, I know, because you have all been Congress people for years. So this is just a refresher for every one of us. So thank you, Suresh ji. Over to you. Yeah. Can I take a minute? Yeah. Sir, can I take a minute? Yes, Yeah. Sathiyon, actually, friends, Dr. Suresh Sharma, I wanted to give an introduction because he would not give about himself. So I wanted to introduce you. Most of you might know already, but I just don't want to miss that opportunity to introduce Suresh ji. Suresh ji is actually, I would say, one of the stalwarts in our entire Congress fraternity. Suresh ji was the head of Jawaharlal Nehru Leadership Institute, which probably trained all the youth Congress leaders that we have right now, almost हा? about 1.5 to 2 lakh people. नाही टाकले ते नाही आले बरोबर. And actually, also Suresh ji, prior to his taking up JNLI, he has done one of the biggest literacy campaign in India, and he has done almost 10 to 15 years of work in in the cooperative sector, and also basically the livelihood programs, all of that. Right now, Suresh ji is helping Sevadal in its training programs. He is the mentor for most of us, and he is also national convener for organization building, and specifically organization building through training and leadership building. So he is also a leadership trainer, and he trains some of the executives, all of them in the leadership program. So, sir, actually, I want to ask you, should we now stop taking people into the call, into the classroom? So it doesn't matter. If somebody is late, let him join wherever it is. Okay. Right. I won't mind, and that you decide, but it's okay for me. Right. Okay, sir. So we will. I'd want to request all of you to mute your video. All of you to mute your video. Kiran, some people accidentally drop off and log again. So keep a watch on who's waiting in the lobby to join. All right. Right now, I keep a watch on that. Right. Yes, I'll do that. Thank you. So all of you, Pushpadasan, please mute your video. Baleshwar ji, video mute kijiye. Everybody mute your video. Video is not necessary. Okay. Thank you. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Kiran ji and Subhash ji. मैं ज़्यादातर हिंदी में बात, because I understand in Sevadal that's how people feel more comfortable. पर बीच में थोड़ा इंग्लिश भी मिक्स करूँगा. प्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत ब्रीफ आउटलाइन है, इसलिए वो इंग्लिश में ज़्यादातर है. और आज मैं ये सोचता हूँ जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं देश में, उसमें मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमारी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, कि हम कांग्रेसी क्यों हैं, और बेसिकली एक ह्यूमनिस्ट जो है, जो मानवतावादी इंसान है, उसको कांग्रेसी क्यों होना चाहिए. ये खुद को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ये फाउंडेशन है. मैं अगर खुद कन्विंस नहीं हूँ, शेकी हूँ, तो फिर जैसा कुछ हमारे लीडर्स के साथ होता है, एनी डे दे कैन वॉक टू बीजेपी और गो समवेयर, बिकॉज उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है. उनका ये क्लैरिटी नहीं है उनको कि जीवन कैसा होना चाहिए, हमको उसमें क्या करना चाहिए. तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली यही रहेगा कि हम अपने दिल में क्लियर हों इस बात के लिए कि हम कांग्रेसी क्यों हैं और हमको क्यों होना चाहिए, और उसके हमारी जो ये पूरी सोच है उसको और स्ट्रेंथन हम कैसे कर सकते हैं. तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के लिए.
और ब्रॉडली हम जो बात करेंगे वो, आई होप यू कैन, तो मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा, प्रैक्टिकल इतिहास में थोड़ा सा इवोल्यूशन की बात करूंगा, और उसके बाद फिर जो करंट आज का वक्त है, जो उसका प्रोडक्ट है, मैं उसके बारे में बात करूँ। तो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम समाज का विकास कैसे देखते हैं। लाखों साल में, हजारों साल में दो तीन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि महिला पुरुष के संबंध कैसे विकसित हुए हैं, जातिवाद कैसे विकसित हुआ है, धर्म का विकास कैसे हुआ है। अगर मोटे मोटे तौर पे हम समझें तो इंसान अकेला जंगल में रहता था, पेड़ पे सोता था अपनी हिफाजत के लिए, शिकार मार के कच्चा मांस खाता था और गैदरर और हंटर था बेसिकली। धीरे धीरे उसने साथ में मिलके ज्वाइंटली एक्शन की वैल्यू को समझा और वो ग्रुप में रहने लगा। धीरे धीरे वो ग्रुप बड़े होते चले गए और इस तरह से क्योंकि एक महिला बच्चे को जन्म देती थी तो बहुत प्रेगनेंसी के जो कुछ दिन होते थे बहुत वल्नरेबल होती थी वो, इसलिए जो सामान बचता था उसकी हिफाजत के लिए किसी एक या दो व्यक्ति को रहना होता था पीछे, तो उसमें वो धीरे धीरे महिला के पास वो रोल चला गया। और जैसे जैसे बाद में आग का विकास हुआ, पका के खाने का हुआ, तो वो रोल हजारों साल की प्रोसेस में महिला के पास चला गया, ज्यादा वो वुमेन सेंट्रिक चला गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की कि प्रकृति ने, नेचर ने हमको इक्वल इंडिविजुअल के तौर पे पैदा किया, इंसान के तौर पर पैदा किया। और ये जो रोल हैं जो इवोल्व हुए वो महिला के प्रति संवेदनशीलता के लिए, उसके सेंसिटिविटी के कारण हुए कि वो एक हमारे ग्रुप की ऐसी मेंबर है जिसको उन दिनों में हिफाजत की जरूरत है, इसलिए उसको शिकार पे नहीं जाना चाहिए, पीछे रह के उसको सामान की हिफाजत करने के लिए रहना चाहिए। ये एक पक्ष है उसका। दूसरा पक्ष है कि जब समूह बड़े होने लगे तो एक दूसरे का सामान होता था, जैसे जानवर पकड़ के रखे हुए होते थे। दूसरा, धीरे धीरे जैसे कृषि का सामान भी इकट्ठा होने लगा, गैदरिंग होती थी, शहद इकट्ठा किया और किया, तो उसको छीनने के लिए एक समूह दूसरे के ऊपर अटैक कर देता था। जिसके पास कम सामान है लेकिन लोग ज्यादा हैं तो छोटे ग्रुप पे अटैक करके उनके लोगों को मार डालते थे, उनका सामान छीन लेते थे। ये सब कुछ समूहों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हुआ। तो इससे धीरे धीरे हथियारों की जो वैल्यू है वो शिकार के अलावा युद्ध के लिए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए हथियारों की कीमत ज्यादा देखी जाने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक लोहार जाति का जन्म हुआ जो अच्छे हथियार बनाते थे, स्पेशलिस्ट हुए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते थे क्योंकि वो बेस्ट कर सकते थे। और इसी तरह से दूसरे काम इवोल्व होने लगे, जो सोल्जर होते थे, मजबूत होते थे, धीरे धीरे वो क्षत्रिय के रूप में बने। मैं बहुत ब्रीफ में इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे अल्टीमेटली आइडियोलॉजी के सेंटर उस पर आना है। तो ये हर जाति का एक रोल निकल के आया उस समूह की, उस ग्रुप की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर व्यक्ति या उसका परिवार बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कर सकता था किसी एक चीज में, इसलिए वो काम उसके जिम्मे सौंपा गया समूह के द्वारा। और धीरे धीरे वो, क्योंकि उसकी जो औलाद थी वो देखती थी, उसमें एक्सपर्ट हो जाती थी, तो वो जाति वो पारिवारिक बनता चला गया, पिता से, माता से, बच्चों में चला गया। और इस तरह से धीरे धीरे वो जो सिस्टम बना उसको हम आज कास्टिज्म के रूप में देखते हैं। धर्म जो है ये बहुत ही बाद की सिचुएशन है, और इसको जब हम डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं तो आगे चल के बात करेंगे कि एक्चुअली धर्म पहले सिर्फ कुदरत के डर से, मृत्यु के, जीवन के डर से, बीमारी के डर से, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उनके डर से जो इंसान का रिस्पॉन्स होता था, वो ही रिलीजन का एक रूप होता था, जो धीरे धीरे आगे चल के इंस्टीट्यूशनल शेप में आया। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इन हजारों लाखों साल में इंसान ने विकास किया है। वो छोटे समूह में आया पहले, फिर बड़े समूह में होते होते धीरे धीरे राजे रजवाड़े और इस तरह से धीरे धीरे कंट्रीज बने, और हम जो आज रूप में जिसमें देखते हैं समाज को, उस रूप तक पहुंचे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हर इंसान पहले बराबर होता था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना महिला पुरुष के बीच का भेद था। महिला और पुरुष सिर्फ
रिप्रोडक्शन के पर्पज से साथ आते थे, और बच्चा माता के साथ कुछ टाइम तब तक रहता था जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता था, नहीं तो वो सॉलिटरी लाइफ यानी एकाकी जीवन जीता था। और वहां से शुरू करके हम धीरे धीरे आज परिवार के रूप में, समाज के रूप में, देश के रूप में रहते हैं। तो ये हमारी विकास की प्रक्रिया हमको समझनी चाहिए। दूसरी विचारधारा जो से निकल के आती है उसकी थोड़ी बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। मनुस्मृति, जिसका हम चर्चा सुनते हैं कि आरएसएस बेसिकली मनुस्मृति के सिद्धांतों को लागू करना चाहती है समाज में, और भारतीय जनता पार्टी उसकी पॉलिटिकल विंग है जो उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इसकी थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष देखिए। हमारे देश में बुद्धिज्म गौतम बुद्ध ने जो स्थापित किया वो 2400 और 2600 साल पहले आया, उसके बीच में वो ज्यादा पनपा। और जैनिज्म जो है वो 2500 और 2900 साल, 2900 साल पहले उनके पहले जो तीर्थंकर थे उनसे लेकर, और 2500 साल पहले भगवान महावीर जो आखिरी उनके तीर्थंकर हुए उन तक के बीच में उसका विकास जैनिज्म का सबसे ज्यादा हुआ। यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म उस काल के हैं। और उससे पहले का जो रूप है उसको सनातन धर्म कहते हैं, जिनको हम बाद में हिंदू के रूप में जानने लगे, जिसका मतलब है कि उसका कोई शुरू का पता नहीं है कि वो कब शुरू हुआ। सनातन का मतलब है हमेशा से, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब समाज विकसित हो रहा था तो उसमें लोगों ने वो कट ऑफ लाइन नहीं देखी जहां पे उस सनातन धर्म को मानने का काल तय किया जा सके। इस काल के अंदर वो शुरू हुआ। इसलिए ये 3 सबसे बड़े धर्म इन 2000 और 3000 साल के बीच में थे। इसी के बीच में हमको ध्यान होना चाहिए कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो काल है वो 2300 साल पहले आया, यानी ईसा से 300 साल पहले 20 साल और 320 साल से लेके और 298 साल के बीच में चंद्रगुप्त जो है सम्राट रहे। और यही काल था जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त से लेके उनके बेटे बिंदुसार और वहां से लेके अशोक तक चाणक्य जिंदा रहे, जो एक ब्राह्मण थे, एक हिंदू थे, जिससे ये पता लगता है कि उस वक्त में जातिवाद और धर्म का वो रूप बाकायदा मौजूद था तीसरे उसके पक्ष के रूप में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो यहाँ शेयर करने का है कि चंद्रगुप्त ने अपने बहुत शुरुआती दौर में राजा बनने के, सम्राट बनने के, जैन धर्म को अपना लिया और वो पूरा जीवन जैन धर्म के एक फॉलोअर रहे। वो मरे भी एक मोंक के रूप में, एक साधु के रूप में, जैन साधु के रूप में। और उनका बेटा बिंदुसार एक हिंदू रहा, और अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद आप जानते होंगे बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके भाई ने, छोटे भाई ने बचपन में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इससे ये पता चलता है कि उस वक्त में लोगों के बीच में धर्म इतने कट्टर रूप में नहीं देखा जाता था जितने कट्टर रूप में हम आज देखते हैं। वो अपने सम्राट को एक धर्म से दूसरे धर्म को परिवर्तित करते देख के स्वीकार कर सकते थे। उनके ये सिर्फ एक इबादत का, एक प्रार्थना का, भगवान की मान्यता का एक साधन था, एक तरीका था, और उस तरीके को धर्म के रूप में व्याख्यात किया जाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी काल में, इस 2000 और 2500 साल के बीच में जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हुए इन तीनों धर्मों के बीच में, अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में ये सब कुछ घटित हो रहा है। और यहाँ पर बीच में एक, जिसको ग्रंथ कहते हैं, एक्चुअली डॉक्यूमेंट है, मनुस्मृति आता है, जिसका सबसे पहला वर्जन जो है वो 2200 साल पहले का पाया जाता है, और 1800 साल पहले का आखिरी वर्जन उसका 4-5 लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से रीराइट किया पहले इनिशियल उसको। तो इसका मतलब मनुस्मृति जो है वो चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक के बाद अस्तित्व में आई। यानी मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ नहीं है जो इनसे पहले कभी आया हो और उसने मानवता का मार्गदर्शन करने के रूप में कोई सिद्धांत इस समाज के सामने रखे। तो ये मनुस्मृति जो प्रोडक्ट है, ये सीधे लगती है कि जो धर्मों का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जो हिंदू अपने आप को कहते थे उस वक्त समाज के वर्ग के रूप में, उन्होंने मनुस्मृति में उन चीजों को व्याख्यात किया कि हम अपने समाज का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडक्ट है वो इन सिद्धांतों के ऊपर कंडक्ट करना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है हमारे पास। इसमें सबसे जो पावरफुल पक्ष है जो आज के डिस्कशन में आता है मनुस्मृति में, वो ये है कि उसमें कास्टिज्म बहुत स्ट्रांग है। उसमें बाकायदा जातियों का एक सीढ़ी नुमा वर्गीकरण है। हालांकि मोटे तौर पे 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो भी हायरार्किकल है, ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। लेकिन उसके अंदर भी जितना सब क्लासिफिकेशन है वो बाकायदा एक सीढ़ी नुमा
जाति प्रथा है जिसके शीर्ष के ऊपर ब्राह्मणों को माना गया, और इसीलिए इसको आम भाषा में ब्राह्मणवाद भी कह देते हैं। और क्योंकि ये मनुस्मृति है, मनु को आधार बना के उसके बारे में लिखी गई एक पुस्तक है, इसलिए उसको मनुवाद भी कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो आम भाषा में पॉलिटिकली या आजकल सोशली उनका प्रयोग होता है। तो उसके बारे में हमको थोड़ा सा ये क्लैरिटी होना चाहिए कि जब हम इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ कोई ऑफेंस नहीं होता, बल्कि एक तरह से उसको डिफाइन करता है कि कैसे उसको हमने समाज में रखा था। इसी में मजेदार बात है कि मनुस्मृति में धर्म का कोई अलग से, खास तौर से इस्लाम का कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इस्लाम आया 1600 साल पहले के करीब। तो जब तक मनुस्मृति की अंतिम कड़ी आई तब तक इस्लाम धर्म था ही नहीं। लेकिन 20वीं सदी में आते आते इन लोगों को, जो मनुस्मृति का पालन करने वाले लोग हैं, इनको ये महसूस होने लगा कि हमको ये चीज एड्रेस करने की जरूरत है कि इस्लाम का क्या किया जाए। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे हिंदुत्व को इंट्रोड्यूस किया, जिसके असल में जो फादर माने जाते हैं हिंदुत्व के, वो सावरकर है। और आप जानते हैं कि सावरकर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, पीछे सेवादल के उसमें उस पर काफी चर्चा भी रही थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको असल में कायर भी कहा जा सकता है। हालांकि वो बचपन में बहादुर माने जाते थे, भले ही वो मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, खुद उनकी जीवनी में लिखा गया है, और उनको अच्छा लगता था दंगों में मुस्लिम्स का मारा जाना, वो सेलिब्रेट करते थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि देश के लिए असल में किया, लेकिन वो एक हत्या के जुर्म में काला पानी गए थे, क्योंकि उन्होंने बीच में भागने की कोशिश की अरेस्ट होने के बाद, इसलिए उनको काला पानी भेजा गया और एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के वो जिम्मेदार थे। इसलिए इन सारी चीजों की वजह से जिस सजा में गए, वो 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया, और आखिर में उसी 50 साल की सजा को धीरे धीरे कम करवा के और उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक तरह से कन्नाइव किया, उनके साथ साठगांठ की और उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश की। ये हम सब जानते हैं, और आखिर में गांधी जी की हत्या तक की इन्वॉल्वमेंट जो की है वो साबित हो चुकी है। तो ऐसे में भी आज के दिन बीजेपी और आरएसएस सावरकर को अपना आइकॉन क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने हिंदुत्व का जो सिद्धांत है वो इनकॉर्पोरेट किया मनुस्मृति के सिद्धांत के साथ में, आरएसएस को फॉलो करने के लिए। इसलिए हमको ये मोटा मोटा जो बैकग्राउंड है इन दोनों पक्षों का, एक तरफ हम आते हैं इतिहास में मनुस्मृति को लेके और उस वक्त धर्मों का क्या रूप था, और दूसरी तरफ से हम ह्यूमन इवोल्यूशन देख रहे हैं जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि समाज हमारा कहाँ से विकसित होकर कहाँ आया है। महत्वपूर्ण बात अब यहाँ ये है कि भारत और हिंदुइज्म का संबंध क्या है, कि जैसा मैंने कहा धर्म जो है वो सिर्फ कुछ हजार साल पहले ही चर्चा में आया या उसका एक इंस्टीट्यूशनल स्वरूप देखा गया, लेकिन सिविलाइजेशंस जो हैं वो पूरे मानव इतिहास में या इवोल्यूशन में ऐसी चीज है जैसे 3-4 दिन पहले हुई हो। 10 से 12,000 साल पहले मेसोपोटामिया और उसके बाद इंडस वैली, इजिप्ट, ये सब जो सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, ये हमारी इस करीब 10,000 साल के अंदर ही विकसित हुई है, और इसका सही जो सच्चा रूप है वो पिछले 5,000 साल में सामने आया है। उससे पहले वो सभ्यताएं इस रूप में देखी जाती थी कि वो खेती करने लगे थे, सेटल होके गांव के रूप में रहने लगे थे, इकट्ठे होके घर बना के रहने लगे थे, पशुओं को पालने लगे थे, उनसे डेयरिंग करने लगे थे, तो इस तरह के, और लेन देन करने लगे थे, एक दूसरे पे जान से मारने के जगह एक दूसरे को समझौता, नेगोशिएशन, लेन देन, उसकी प्रथा शुरू हुई जो बेसिकली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से थे। तो इसलिए हमारी जो ये पूरी कहानी है ये खास तौर से इंडस वैली सभ्यता की, जिसके हिस्सा हम हैं, वो 7,000 साल पहले शुरू होती है। और इंडस वैली क्या है? ये अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो हिमालयन बेल्ट है उसके बीच की एक मेजर वैली है, जिसके आसपास पनपी सभ्यता को हम इंडस वैली या हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता जब विकसित हुई, यहाँ के लोग एडवांस हुए, उनके हथियार एडवांस्ड हुए, उनके लेन देन और उनके जो साधन संपन्नता बढ़ी, तो धीरे धीरे उन्होंने फैलते हुए पूरे हिंदुस्तान में साउथ इंडिया तक पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, और इधर बढ़ते बढ़ते वो ठीक बर्मा तक पहुंच गए, इस तरफ वो अफगानिस्तान तक पहुंच गए। तो इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है
इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अपनी जो कल्चर है उसको लेके और अपने साधनों को लेके धीरे धीरे अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस इस पूरे के पूरे एरिया में उन लोगों पे जो वहां के ओरिजिनल बासिंदे थे, जो ट्राइबल्स थे या साउथ इंडिया में द्रविड्स थे, उनके ऊपर अपने आप को स्थापित किया। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि जो हिंदू शब्द है, धर्म है, जिसको हिंदू धर्म के रूप में मानते हैं, ये दरअसल कोई धर्म नहीं है। हिंदू अपने आप में देखा जाए तो एक धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म कहा जा सकता है। लेकिन हिंदू शब्द जो है वो सिंधु शब्द से है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको असल में हिंदी में कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अंग्रेजी का शब्द है, खासतौर से यूरोपियंस यूज करते हैं। इसलिए जब सिंधु कहते हैं तो उस एरिया में स को बहुत लोग ह बोलते हैं। आप भी आज भी आप उसकी पूरी बेल्ट में जाएंगे तो स शब्द को वो हा के रूप में बोलते हैं। जब सिंधु कहते हैं तो हिंदू, वो लोग जो बाहर से आते थे, या धीरे धीरे वो शब्द हिंदू के रूप में जाना जाने लगा और इस पूरी सिविलाइजेशन से निकले हुए लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। तो एक तरफ तो सिंधु हिंदू, यानी इस घाटी की सभ्यता से पैदा हुए लोग हिंदू हैं, तो वो एक अपने आप में धर्म नहीं है, उसको जनरलाइजेशन के तौर पे कुछ लोग धर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे बीच में एक स्पष्ट बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि भारत 1947 से पहले कभी भी एक नेशन के रूप में नहीं था। जैसा हम जब भारत माता की बात करते हैं, जैसे अगली स्लाइड है, उसमें यह समझना जरूरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसने कलिंग को भी अपने बीच में शामिल कर लिया, जिसको ओडिशा कहते हैं, जो चंद्रगुप्त के टाइम में नहीं शामिल किया जा सका था। उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल का जो एरिया था, वो सबसे बड़ा था। अशोक के टाइम पे ये एरिया करीब करीब सबसे बड़ा था, जिसमें एक राजा का इन्फ्लुएंस, उसमें भी साउथ इंडिया उसमें शामिल नहीं था। साउथ इंडिया की कोई स्टेट सम्राट अशोक के भी कंट्रोल में नहीं थी, उस पर डोमिनेंस उनका नहीं था। इसलिए इंडिया को जिस रूप में हम देखते हैं, वो अंग्रेजों के आने के बाद उनके जो पूरा इन्फ्लुएंस बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक था, उसमें जब अलग अलग सेगमेंटेशन हुआ, तो इसको भारत के रूप में हमने, जो शब्द भारत पहले से चला रहा था, लेकिन उसको भारत राष्ट्र के रूप में हमने देखा, जिसमें बहुत सारे रजवाड़े थे, राजा लोग उनका कंट्रोल करते थे। तो 1947 के बाद पाकिस्तान, यानी ईस्ट और वेस्ट जो पाकिस्तान था उस वक्त, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, और भारत जो अभी का मौजूदा भारत है, ये कार्व आउट हुआ और उसमें धीरे धीरे करके सभी राजे रजवाड़ों को मर्ज करके उसका यूनियन बनाया, जो एक नेशन के रूप में स्थापित, यानी ये यूनियन ऑफ इंडिया जो ये फर्स्ट टाइम इसने एक राष्ट्र का रूप लिया। तो इसलिए जब हम टाइम करेंगे कि क्यों हम उसको भारत माता कह सकते हैं किसी एक रूप में, ये थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। तो हमने दो तरह की आइडियोलॉजी देखी। एक तो वो आइडियोलॉजी जो विकास की प्रक्रिया में विश्वास करती है कि समाज बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती है, उसका रहन सहन कल्चर सब बदलता है, इसलिए उसका जो गवर्नेंस है, उसके जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल है या गवर्नेंस है, वो उनकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। ये दूसरी आइडियोलॉजी है जो बेसिकली रिएक्शनरी है, और वो ये वही 1800 से 2200 साल पहले का मनुस्मृति के दिए गए सिद्धांतों को आज भी समाज के ऊपर थोपना चाहते हैं, चाहे वो जाति का रूप हो, चाहे वो महिला पुरुष के संबंधों का रूप हो, या उसके बाद हिंदुत्व के रूप में उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया उनका हिंदुत्व हो, जिसको वो आमतौर से हिंदू से कंफ्यूज करने के लिए हिंदुओं को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इस बारे में। तो मोटे तौर से वो आइडियोलॉजी रिजिड है, वो चेंज नहीं करना चाहती समय के साथ लोगों की जरूरत के हिसाब से, और वो हमेशा ट्रेडिशंस और एंशिएंट कल्चर, उसकी महानता की बातें करके ही लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, कि ये जो भारत माता का रूप है, ये भारत माता है क्या? हमको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको है पीपल सेंट्रिक आइडियोलॉजी, जिसमें जो समझती है कि भारत नागरिक, और दूसरी विचारधारा है जो क्षेत्र में विश्वास करती है, अखंड भारत, क्षेत्र,
कश्मीर साथ होना चाहिए, बांग्लादेश मर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम्स का क्या किया जाए वो जरूरत नहीं। कश्मीर चाहिए, कश्मीर के जो मुस्लिम लोग हैं वो नहीं चाहिए। तो ये जो क्षेत्रवाद है वो उसका थीम होता है, उसमें वो अपनी महानता देखना चाहते हैं, बड़ापन देखना चाहते हैं, और उसमें कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जेंडर वो उनके पॉलिटिकल, आपने ज्यादातर ने ये वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा रेफरेंस के तौर पे दिखाना चाहता हूं, ये बहुत ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं है, ऑडियो ऑडियो ओ सॉरी, और एक बार चला लीजिए। प्ले इट अगेन, या प्लीज प्लीज। एक सेकंड, बट ऑडियो कहाँ से? अच्छा, यू हैव टू डू देयर और आई हैव टू डू, बिकॉज आई एम गेटिंग द साउंड। हाँ, आपका जो ऑडियो, हाँ। लेट मी प्ले इट अगेन। आ रहा है सर, आपका ऑडियो आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। सुरेश सर, आपका जो है वीडियो पॉज हो गया है, ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम है? लगता कनेक्शन प्रॉब्लम है। Sir, we are not able to see your video. हाँ. आई थिंक सिस्टम तो हैंग नहीं हुआ। यस यस, क्लियर। सर अभी म्यूट है Power had आपका। gone off. सुरेश सर, Yes. ऑडियो म्यूट है अभी, वीडियो तो आ रहा है आपका। ओके, थैंक यू। Oh, you are getting audio now? Yeah. Yes, but it doesn't show muted. Maybe some problem. ठीक है सर. Are you getting? you- Are you getting? Yeah. Okay. Okay. I'm sharing the screen again. So could you see this? I'm just trying once again in case you. Are you getting? Not able to hear the audio of the video that you have played. Okay. Okay. Then I'll explain. You have seen the video. Screen sharing is Yeah. stopped as share window is closed. Okay. Just a moment. Yeah. Can you get the presentation now? Yeah. Okay, sorry everybody, because power went off and this audio was not audible. So actually in this video, Nehru ji says कि भारत माता में पहाड़, जंगल, ये सब तो हैं, नदियां वगैरह, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोग, यानी लोगों के बिना भारत माता का कोई अर्थ नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप ये कहेंगे कि ये इस वीडियो में क्या खास बात है? दरअसल यही नैरेशन या ये स्टेटमेंट नेहरू जी का
जिसको आमतौर से नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया भी कहते हैं दुनिया में, वो सबसे नेहरू जी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और भी बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को पूरी कांग्रेस के सामने इस लेवल तक क्लैरिफाई किया कि ये समझ में आना शुरू हो गया कि कांग्रेस को किस लाइन पर काम करना चाहिए। क्योंकि क्यों वो पसंद नहीं करते इस आइडिया ऑफ इंडिया को? क्योंकि अगर हर व्यक्ति भारत माता है, अगर मैं और आप सब भारत माता हैं, तो एक मुस्लिम भी भारत माता है, एक दलित भी भारत माता है, वो ये बात एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते। उनके पूरा नरेशन ही कास्टिज्म और कम्युनल पे उस पर टिका हुआ। वो भारत माता में, वो देवी के रूप में महिला को तो रख सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि महिला को आजादी का कोई अधिकार नहीं है, इंडिपेंडेंस डिजर्व नहीं करती, वो हकदार नहीं है इंडिपेंडेंस, उसके बस का नहीं है इंडिपेंडेंस। इसलिए उनकी जो पूरी सोच है मनुस्मृति की, वो डिफीट हो जाती है इस आइडिया ऑफ इंडिया से। इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो पूरी विचारधारा है उसका सार है कि हमारे लिए लोग भारत माता हैं, उनका भला ही हमारे लिए भारत माता की सेवा करना है। सिर्फ क्षेत्रों का की रक्षा करना या बाउंड्रीज की रक्षा करना ही भारत माता नहीं है, वो भी है, वो देश की रक्षा अपनी जगह है, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है हर व्यक्ति भारत माता के बच्चे के रूप में अपने आप को महसूस करे, फील करे कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, ये मेरी माँ है, ये मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना किसी भी दूसरे नागरिक से करती है। तो ये जो जिम्मेदारी है कांग्रेस विचारधारा में जो रिफ्लेक्ट होती है, उसको आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब इसको रिलेट करके देखते हैं। जब हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, मानव विकास देख रहे हैं, तो हम लोगों का विकास देख रहे हैं। उस क्षेत्र में क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे वो थे, कहाँ वो पेड़ थे, कहाँ पहाड़े थे, वो नहीं हम देख रहे हैं। हम उनके विकास को देख रहे हैं कि कैसे उन समाज का विकास हुआ, कैसे उन्होंने अपने आप को कल्चर में ढाला, कैसे रहन सहन शुरू हुआ, कैसे उनका नेगोशिएशन शुरू हुए, व्यापार शुरू हुए। इसलिए हमारी जो विचारधारा है उसे अलग है। उसी के आधार के ऊपर जब देश आजाद हुआ और हमारे जिम्मे ये हुआ कि हम देश को कैसे गवर्न करें, गवर्न जैसा मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, 3 चीजें होती हैं गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ये तीनों चीजें गवर्न करने के लिए गवर्नेंस होती है, सिस्टम होता है, मतलब उस देश को चलाने के लिए, जिसको हम सरकार कहते हैं या सत्ता कहते हैं। तो उसको चलाने का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी विचारधारा पे टिका हुआ है। वो पूरी कांग्रेस की विचारधारा का एक रिफ्लेक्शन है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी वो लगभग मिरर इमेज है। कैसे? क्योंकि उसी भारत माता के सोच के आधार के ऊपर 4 मेन पिलर हैं उसके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब न्याय की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब देश आजाद हुआ तो हमने रिजर्वेशन लागू किया। अब बहुत लोगों को भले ही वो चीज पसंद ना आई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हजारों साल से पिछड़े हुए थे, निरक्षर थे, उनकी माली हालात बहुत खराब थी, वो उनको सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ देखा जाता था। उनको बिना हैंड होल्डिंग के, बिना सपोर्ट के उनका विकास संभव नहीं था। इसलिए रिजर्वेशन जो है वो लागू किया गया और उसी की वजह से आज हम समाज के अंदर कम से कम जातिगत हिसाब से पहले के मुकाबले कुछ हद तक बदलाव देख पाते हैं। तो उस न्याय को प्रदान करने के लिए रिजर्वेशन एक उदाहरण के तौर पर मैंने पेश किया। ऐसे बहुत सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने और जो सरकारें बनी देश में आजादी के बाद की, उन्होंने ये एंश्योर किया कि हर इंसान के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो न्याय हो, वो बराबर उसके अधिकार हो, बराबर प्लेटफॉर्म हो उसके पास अपना जीवन जीने का। इसी तरह से लिबर्टी है, बेसिकली इट्स अबाउट फ्रीडम, कि आप क्या खा रहे हो और आपकी लिंचिंग ना हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप जो भी आपका भोजन है, जो भी आपकी पहनावा है, संस्कृति है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, किससे शादी करना चाहते हो, ये सारी चीजें जो है आपकी लिबर्टी उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। इक्वालिटी है, हम सभी जातियां, हम सभी धर्म, हम सभी महिला पुरुष, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा और अनपढ़, हम सब बराबर हैं। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसकी हम इंश्योर करते हैं। और फ्रेटर्निटी ये कि हमारे सारे प्रयास बंधुत्व के लिए होने चाहिए, कि हम सब भाई बहन इस देश। वो ये नहीं है, ये सोच गलत है कि ये हम हैं और वो है। नहीं, हम सब हम हैं, भारतवासी हैं, हम भारत माता की संतान हैं। तो ये जो 4
पिलर हैं, इसी से सारा कॉन्स्टिट्यूशन संचालित होता है, जिसको आरएसएस तोड़ देना चाहती है, क्योंकि उनके पास दो ही तरीके हैं इससे आजादी पाने के और अपनी विचारधारा लाने के। एक तो ये कि वो सत्ता में जैसे ही आए सीधे सीधे वो मनुस्मृति को थोप देते बहुमत का फायदा उठा के, और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि क्योंकि जनता उसको स्वीकार ही नहीं कर सकती आज के युग में, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना कमजोर बना दिया जाए और उसके अंदर धीरे धीरे इसी के अंदर वो ब्लॉक फिट कर दिया जाए कि आपकी को पता भी नहीं लगे, लेकिन आपकी सारी दीवारें तोड़ के, और दूसरी जो है वो उनके बीच में पिलर्स फिट कर दिए जाए। आर यू गेटिंग मी किरण जी? क्योंकि पावर वापस आई है तो डिस्टर्ब नहीं। हेलो किरण जी? Everything is fine, sir. Please go ahead. Okay, great. Thanks. So basically ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट नेहरू जी के वो स्टेटमेंट है कि भारत माता का मतलब है हम लोग, हम जो सब नागरिक है उसके। इसलिए ये जो लड़ाई है सारी इस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की है, उसको डिस्ट्रक्चर करने की है, उसको बचाने के बीच में जो संघर्ष है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है ये हमारे जो नॉर्म्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं वो माने जाते हैं, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट तभी कर सकते हो सबको साथ लेके चलने का जब आप भारत माता के रूप में हर व्यक्ति को देखते हो। बीजेपी भले ही कहे कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सबको बराबर भारत माता मानते नहीं। वैसे ही सोशल जस्टिस नहीं हो सकता, अगर एक वर्ग के साथ आप न्याय नहीं करेंगे तो सोशल जस्टिस कैसे होगा। सेक्युलरिज्म में वो तो डिक्लेयर्ड तौर पे मना करते हैं, और नॉन वायलेंस आप जानते हो जो दंगों को अपना एक बहुत बड़ा टूल मानते हो, जहाँ पे रिसर्च भी ये कहती हो कि उनको दंगों का हमेशा फायदा होता है बीजेपी को। तो नॉन वायलेंस हमारा सिद्धांत है, क्योंकि हम ऊपर की जो तीनों चीजें हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे लिए नॉन वायलेंस एक तरह से आधार है इस चीज का। ऐसे ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम हर व्यक्ति को, नागरिक को भारत माता समझते हैं, इसलिए हम डेमोक्रेसी को फाउंडेशन मानते हैं और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया हमने पार्लियामेंट, संसद से लेकर और पंचायती राज तक, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को कमजोर कर दिया, एनजीओज के एग्जिस्टेंस को कमजोर कर दिया, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास नहीं करते। नेशनल इंटीग्रेशन जैसे हमने बात की, हमारे लिए लोग देश है, उनके लिए क्षेत्र देश है, वो जियोग्राफिक अप्रोच है, हमारी डेमोग्राफिक अप्रोच है। वर्ल्ड पीस में जब हम अपने अंदर पीस चाहते हैं, लोगों के बीच में शांति चाहते हैं, भाईचारा प्रेम चाहते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में शांति की बात कर सकते हैं। इसलिए हमने नॉन अलाइन मूवमेंट दिया दुनिया को, पंचशील के सिद्धांत दिए, जबकि उनका कोई ग्लोबल विजन नहीं है। वो स्वार्थ पे और बिजनेस पे टिकी हुई सोच के बाहर कभी जा नहीं सकती उनकी सोच। और जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया में भारत एक अकेला ही देश रह जाएगा जिसको हम इस पूरे वर्ल्ड पीस के नजरिए से अगर देखें, और कभी इस लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने वाला दूसरा देश पूरी दुनिया में नहीं होगा। ये सोच उनकी वर्ल्ड पीस के नजरिए से है ही नहीं, क्योंकि वो सोचते नहीं है। सोचते तो वो शायद मानवता के आधार पे काम करते। अब एक जो चर्चा बहुत होती है नेशनलिज्म की कि हम नेशनलिस्ट हैं, हमारे भी लीडर बहुत जोश शोर से कह देते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, लेकिन एक्चुअली हम पैट्रियोटिक हैं, हम देशभक्त हैं। दोनों में फर्क क्या है? नेशनलिस्ट जो होता है वो घमंडी होता है, वो पहले अपने देश पर घमंड करता है, फिर अपने धर्म पे घमंड करता है, फिर अपने पुरुषत्व पर घमंड करता है, फिर अपनी जाति पर घमंड करता है, फिर अपने खानदान पर, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले पे, और आखिर में वो खुद पे जाके टिकता है। मैं हूं बहुत बड़ी चीज, मैं हूं सब कुछ हूं। वो अपने स्वार्थ के नजरिए से ये अंदर की तरफ की यात्रा होती है जो नेशनलिज्म के कैरेक्टर से शुरू होती है, जबकि पैट्रियोटिज्म जो है या जो देशभक्ति है वो अपने बाहर की तरफ की यात्रा है, और वो सिर्फ देश पर जाकर नहीं रुकती, जरूरत पड़ने पे वो पूरी दुनिया की मानवता के बारे में सोच रखती है। वो कभी भी एक सच्चा देशभक्त इस बात से खुश नहीं होगा कि पाकिस्तान में हमसे ज्यादा लोग मर रहे हैं कोरोना से, इसलिए हमको खुश होना चाहिए। ये देशभक्त कभी नहीं चाहेगा। राष्ट्रवादी चाहेगा। देशभक्त क्यों नहीं चाहेगा? वो ये चाहेगा कि मेरे पड़ोसी हैं, वहां सुकून रहेगा तो उससे मेरे यहाँ भी सुकून में मदद मिलेगी। उनके लोग भी खुश रहने चाहिए, हमारे लोग भी खुश रहने चाहिए।
जब आपस में झगड़ा होगा किसी वजह से, तब देखेंगे दो राष्ट्रों की तरफ उसको हैंडल करेंगे। इसलिए एक पैट्रियट जो है जरूरत पड़ने पे अपने देश के लिए जान दे देता है, लेकिन नेशनलिस्ट स्वार्थी होने की वजह से कभी त्याग नहीं करता, कभी बलिदान नहीं देता। इसलिए जो पैट्रियट्स हैं, जो आपकी हमारी पार्टी के लीडर्स हैं, उनके पैट्रियटिज्म के, उनके सैक्रिफाइसेस के, कुर्बानियों की गाथाएं भरी पड़ी है इतिहास में पिछले 100 साल में। ओके, और उनके नेशनलिज्म जो की बात करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कभी एक भी व्यक्ति का कोई बलिदान जिक्र करने लायक है नहीं जिसने कोई कुर्बानी इस देश के लिए दी हो, बल्कि गद्दारी, मुखबिरी और अपने ही लोगों के साथ जो कृत घनता होती है वो करने का उनका पूरा इतिहास रहा है। इसलिए हमको ये स्पष्ट होना चाहिए हमारे साथियों को कि हम पैट्रियोटिक हैं, हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी सोच संकीर्ण सोच। तो इस पे आप चाहे तो डिस्कशन भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे सोशल मीडिया के खासतौर से साथियों को जरूर अंदाजा होना चाहिए कि क्योंकि 3 चीजें गवर्न होती हैं किसी भी गवर्नेंस और आइडियोलॉजी से, इसलिए हमको 3 जो अलग अलग विचारधाराएं हमारे सामने होती हैं, एक वामपंथी विचारधारा, एक दक्षिणपंथी विचारधारा और दूसरी लेफ्ट ऑफ सेंटर या सेंटरिस्ट या लिबरल आइडियोलॉजी, जो बेसिकली कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। उन तीनों के रूप को समझते हैं। लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है, वो प्रॉपर्टी को पब्लिक एसेट मानती है, वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के अधिकार को देना नहीं चाहती। लाइवलीहुड्स को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, जो इस तरह की चीजें हैं और रोजगार हैं, उनको मानती है अधिकार लोगों का कि ये सत्ता को उनको देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देता है तो वो सत्ता की विफलता है। दूसरे उनके सिस्टम में लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना और धन जमा कर लेना अलाउड नहीं है, सैद्धांतिक रूप से बताया। और सोशल सिक्योरिटी पूरी, जैसा मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह और रोजगार, ये सारी, और रिहाइश, ये सब, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी 100% होनी चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। फिर वो कहते हैं कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो कंट्रीब्यूट करता है, उसकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। वो तय करेगा कि कैसे उस देश का, राष्ट्र का संचालन होना चाहिए। और उनके बीच में रिलीजन, जाति, महिला पुरुष, क्षेत्र के आधार के ऊपर इनइक्वालिटी नहीं होती है, वो उस चीज को टॉलरेट नहीं करते, तो वो उस लेवल पे इक्वालिटी होती है। तो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, वो उसमें क्या फर्क है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट होल्डिंग्स जो है, वो अधिकार देती है। वो ये कहती है कि मार्केट को चलाने दो, हमारा क्या मतलब है, हमारा लाइवलीहुड प्रोवाइड करने का, शिक्षा, स्वास्थ्य की हमारी क्या जिम्मेदारी है। वो तो लोग पैसा खर्च करो और जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल होने चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, स्कूल प्राइवेट होने चाहिए, वहां जाओ, पैसा दो, फीस दो, सर्विसेज पाओ। सो ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, उसकी सोच ये होती है, उसमें प्रॉफिट कमाना और धन एकत्रित करना, कितने भी स्तर पे एसेट्स को जमा कर लेना, वो बाकायदा किसी का भी अधिकार है। और डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है दक्षिणपंथी ताकतें, धन के ताकत पे और उस धन के रखने वाले कुछ लोगों की ताकत पे। जैसे आज के युग में कहें तो मुकेश अंबानी, अदानी वगैरह की स्ट्रेंथ पे, उनके धन की ताकत पे, और उससे जो मैनेज करके सरकार को अपने तरीके से डिक्टेट करना कि कैसे देश चले, वो जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है दक्षिणपंथी ताकतों में। और रिलीजन को, जेंडर को, कास्ट को, नेशनलिज्म को, रीजनलिज्म को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, टूल के तौर पे, पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उनका कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं होता। कांग्रेस कहाँ ठहरती है इसमें? ये लेफ्ट ऑफ सेंटर है, मतलब सेंटर दोनों के बीच में है, लेकिन थोड़ा झुकाव उसका वामपंथी है। कैसे कि लाइवलीहुड को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को वो सत्ता की जिम्मेदारी मानती है कि ये चीजें सरकार की जिम्मेदारी है, इनको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी और हर व्यक्ति को बराबर वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये जो है ये बाकायदा कांग्रेस की या जो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है उसका हिस्सा है। और इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रीजन, वो बाकायदा उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। ग्लोबल पीस में विश्वास करते हैं कि प्रोग्रेस तब होगी जब आपके घर में शांति होगी। लेकिन जो दक्षिणपंथी रुझान की चीज है इसके अंदर, वो है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड टू मेक प्रॉफिट। आप कमा सकते हो और प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, मार्केट्स फ्री हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं।
टैक्सेस हैं, बढ़ते हुए टैक्सेस हैं, उनके ऊपर कंट्रोल है, कुछ चीजों पे रुकावटें हैं, मोनोपलाइज नहीं कर सकते, वो सब कुछ कंट्रोल करके उनको धन कमाने का और धन जुटाने का अधिकार है। तो ये तीन जो हमारे पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गवर्नेंस के, उनके तीनों के मोटे मोटे अंतर को समझना चाहिए। ये आधार हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी गवर्नेंस का अंतर तय होता है। अब दो एक रेफरेंसेज हैं जिससे हमारी समझ में ये आना चाहिए कि कैसे इन्होंने हिंदुत्व को इंट्रोड्यूस किया 1923 में सावरकर ने, और फिर बाकायदा प्रमोट किया इस चीज को कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देशों के रूप में हैं, दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, रह इकट्ठे रहे हैं, लेकिन हम दो राष्ट्र, एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो राष्ट्र हैं। जिससे धीरे धीरे वो सिद्धांत जोर पकड़ा और ऐसे हालात हो गए कि हिंदू और मुस्लिमों का साथ रहना मुश्किल हो गया, और आखिर में इस देश का बंटवारा करने की आधारशिला तय हो गई। वही अंग्रेज उस वक्त चाहते थे। तो इसलिए काले पानी से बाहर आने का जो एक समझौता हुआ था, धीरे धीरे वो उसको एग्जीक्यूट करने का रोल, लीडरशिप जो है वो सावरकर ने प्रदान किया। ये भी आपका स्पष्ट है, बाकायदा गोलवलकर जो 30 साल से ज्यादा आरएसएस के चीफ रहे, वो हिंदुओं से, अंग्रेजों से लड़ने की बजाय वो ये कहते थे उनके साथ मत लड़ो, वो हमारे दुश्मन नहीं है, ये ऊर्जा बचाओ, इसको लड़ने के लिए इस्तेमाल करो, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ। इसलिए, और क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं ये धरती हिंदुओं की है, पारसी और यहूदी यहाँ मेहमान हैं और ईसाई और मुसलमान घुसपैठिए हैं। ऐसा उन्होंने बाकायदा 1956 में अपनी पुस्तक में भी लिखा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यदि हम पूरे 5-7 हजार साल के इतिहास को देखें तो हम सारे ही उस तरीके से घुसपैठिए ही हैं, क्योंकि हम इंडस वैली के प्रोडक्ट हैं जो धीरे धीरे इधर फैल के डोमिनेट हो गए, डोमिनेट किया हमने, और लोग आते जाते रहे हैं, सत्ताएं बदलती रही हैं। इसलिए यहाँ पर हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो रह रहा है, जो वहाँ पे इस देश का नागरिक है। तिरंगे को भी वो इसी रूप में देखते हैं कि 3 रंग जो है वो अपशकुन होते हैं। इसका मतलब एक ही रंग होना चाहिए, एक ही धर्म की सत्ता होनी चाहिए। तो वो इसलिए उन्होंने तिरंगे को कभी सम्मान नहीं दिया, 1930 में भी नहीं दिया, 1947 में भी नहीं दिया और बाद में भी नहीं दिया। या काफी चर्चा सोशल मीडिया में आप करते रहते हैं। तो इसलिए इन चीजों को उससे रिलेट करना चाहिए। और जब आपको ये डाउट हो कि वो संविधान का विरोध क्यों कर सकते थे, तो ये बाकायदा ऑफिशियल है कि उन्होंने भारतीय संविधान को एक मूर्खतापूर्ण डॉक्यूमेंट कहा था कि ये बकवास है, ये कहां से लेके आ गए। असल में तो उनको मनुस्मृति को अपना लेना चाहिए, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है मनुस्मृति की, इसलिए वो हमारे पास एक रेडीमेड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लागू करना चाहिए। ये बाकायदा उन्होंने अपने 30 नवंबर 1949 के अंक में एडिटोरियल में लिखा, ऑर्गेनाइजर न्यूज़लेटर जो उनका मुखपत्र है अंग्रेजी का, उसके अंदर ये बाकायदा ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। तो इसलिए जो है, और खिल्ली उड़ाई उन्होंने, लेकिन हमारे संविधान के पंडितों के लिए ये बेमाने है। पंडित कौन? संविधान के पंडित नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर, जो बेसिकली उसको लागू कर रहे थे संविधान। तो मूल रूप से ये बात हमको समझनी चाहिए कि पूरा हमारा जो आइडियोलॉजी का जो विकास है उसकी आधारशिला कहाँ है और उसके हम कहाँ से होके गुजरे हैं और आज कहाँ पहुंचे। फिर ये फासिज्म से यानी डिक्टेटरशिप से कहाँ लिंक्ड है। ये लोग डिक्टेटरशिप के बहुत जबरदस्त प्रशंसक रहे हैं, इसलिए जो जब मोदी जी डिक्टेटर के तौर से पेश आते हैं या उनको सब मिलकर डिक्टेटर के तौर पे पेश करते हैं, तो ये उनकी विचारधारा का हिस्सा है। आरएसएस का प्रमुख भी एक डिक्टेटर के तौर पे काम करता है क्योंकि वो उनकी विचारधारा का हिस्सा है। और 1944 का ये जो पत्र है ये बाकायदा सबूत है इस बात का। 1940 में सावरकर ने नेहरू के फांसीवाद विरोध का, यानी नेहरू जी ने क्योंकि फासिज्म को का विरोध किया था और हिटलर का जबरदस्त विरोध किया था, उसका मजाक उड़ाते कहा था कि जर्मनी और इटली ने जिस बेहतरीन तरीके से अपने आप को उबारा और शक्तिशाली बनाया है, फांसीवाद की जादू की ये छड़ी उसकी उपयोगिता साबित करने के लिए काफी है। यानी डिक्टेटरशिप एक जादू की छड़ी है, उसका इंपैक्ट आपको देखना है तो इटली और जर्मनी में देखो। इसका मतलब हमारे यहाँ भी वो डिक्टेटरशिप अपनाई जा सकती है। सॉरी मूव करने करना। अभी मैं लास्ट फेज में आ गया हूँ। फ्यूचर सिनेरियो जो आज के कंडीशन में नजर आ रहा है, अब आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं हम पास्ट पे कि हमारे जितने स्टेप्स हैं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, ग्राम पंचायत का जो राजीव जी का पूरा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो
और उसके बाद में फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, जो नरेगा जिससे आया, तो ये जो अधिकार मान के लोगों का, भारत माता के लोगों का अधिकार मान के उन चीजों पर काम करना एक मानव केंद्रित रोल रहा है, जो हमारी विचारधारा का प्रोडक्ट है। और उसको अंतर हमको करके देखना चाहिए कि ये जब भी सत्ता में आते हैं तो ये बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, इनका गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता, वो मजदूरी करे, कमाए और खाए, मरे तो मरे। और ये आज सबसे ज्यादा स्पष्ट है कि इतनी सलाह देने के बावजूद सोनिया जी ने अभी 3 दिन पहले कहा कि 7,500 रुपया प्रति परिवार की न्यूनतम जरूरत है, उसको देना चाहिए सरकार को, नहीं तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन वो 500 से ज्यादा सोच भी नहीं सके, और वो 500 रुपया भी कितने लोगों के पास पहुंचा ये आप समझते हो, सारे पढ़े लिखे लोग और खाते पीते लोगों के वीडियो दिखा के उन्होंने प्रचार किया। तो ये विचारधारा का प्रोडक्ट है, इसलिए हमको इससे हैरानी या शॉक्ड नहीं होना चाहिए। तो करंट सिनेरियो में ट्रेजेडी ये है कि जब ये जो सीन इस वक्त बना है इंडिया का, उसमें इकोनॉमी पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। भले ही ये कहें कि इसकी वजह से होगी, कहेंगे, लेकिन डीपी थी, जबकि असल में तो 1%, आधा % की बातें सही मायने में की जा रही थी। तो इकोनॉमी पहले ही इतनी बुरी हालत में थी कि इस क्राइसिस को हैंडल करने की कैपेसिटी इस सरकार के पास बड़ी लिमिटेड है। दूसरी बात, कोरोना का जो सिनेरियो है वो हम चाहें या ना चाहें लेकिन लंबा होने वाला है और बहुत पेनफुल होने वाला है। इट इज जस्ट बिगिनिंग, वी शुड बी क्लियर अबाउट इट। और हमको इसको एक तरह से 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो गरीबों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, सपोर्ट करें, सपोर्ट करते दिखें, उनको हमारे ऊपर विश्वास हो, वो हमारे पास आए और हम उनकी मदद कर पाए। और अनएम्प्लॉयड के इशू के ऊपर हम ध्यान दें। और जो बिजनेस है, खासतौर से छोटा बिजनेस है जिससे एम्प्लॉयमेंट तय होती है, जिसके ऊपर सोनिया जी ने पत्र लिखा अभी प्रधानमंत्री को 5 सलाह देके एमएसएमई के लिए, वो जो ओरिएंटेशन है वो उस पर हमको केंद्रित करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट क्योंकि बहुत पहले से ही बहुत बुरी हालत है, इसलिए अपनी पुअर पॉलिसीज को वो कंटिन्यू किए हुए हैं। वो आज भी बिजनेस सेंट्रिक है, सिर्फ बिजनेस सेंट्रिक है, उसमें पीपल सेंट्रिक अप्रोच नहीं होने की वजह से वो बिजनेस भी कोलैप्स करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस डेफिनेटली चाहेंगे कि इस बवाल से बचने के लिए जो लोगों का गुस्सा उनके ऊपर आएगा चढ़ के, उस वक्त वो कम्युनलिज्म को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहेंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और जिन लोगों में ये जहर जो है काफी हद तक भर दिया गया है, उनको अपनी तरफ बनाए रखने के लिए कोशिश करने के लिए, तो इसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। तो मुझे ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि ऐसे में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमें बजाय सरकार से सीधे टकराने के, ये कहने के आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, हमको गरीब, किसान, लेबर, मिडिल क्लास के मुद्दों को उठाना चाहिए, उनकी जो जरूरतें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। हमको सरकार पे दबाव डालना चाहिए कि आप इनको दीजिए, ताकि वो सब भी देखें कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग जेस्चर की बजाय हम पॉजिटिव जेस्चर के साथ दिखने चाहिए। जैसा राहुल जी ने पूरी उसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट अवॉइड करके ये कहा कि हम इस वक्त बिल्कुल मदद करना चाहते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं। ये हमारी नीचे तक रणनीति होनी चाहिए। और कम्युनल जो नैरेटिव है उसको तोड़ने का ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि लोगों के पास समय है, वो सुनते हैं, वो बहुत कुछ देखते हैं, घर में मौजूद हैं। और अगर हम फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सके तो वो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने तय किया है अपने लिए कि मैं छोटे छोटे वीडियो बना के जो कम्युनल नैरेटिव है इन लोगों का, उसके ऊपर चोट करने की कोशिश करूंगा। जितने लोग मुझे थोड़े बहुत देखते हैं, कम से कम उनमें जो न्यूट्रल हैं या थोड़े से उस तरफ इंक्लाइंड हैं मुझे जानने वाले, अगर वो उन तर्कों को, उन फैक्ट्स को देखें तो उनको समझ में आना चाहिए कि वी हैव बीन फूल्ड टिल नाउ, और ये सच्चाई नहीं है जिसको हम जानते हैं। वास्तविकता ये है कि हम सब यहाँ पे रहने वाले लोग अपने अपने जीवन जीने के लिए संघर्षरत रहते हैं, हमको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो ये एक नैरेटिव है कम्युनल, जिसको तोड़ने का आज का वक्त जो है हमारे लिए गोल्डन है। और हम बहुत बड़ी तादाद में लोग ओपन भी होंगे सुनने के लिए, और वो आहत भी होंगे इन हालात से। इसलिए जब हम पॉजिटिव बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, तो उसको सुनेंगे। और तीसरी मुझे लगता है कि
लोगों के साथ, खासतौर से संगठन में जो नीचे काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट्स पे हमारे साथी सेवा दल के या जो पार्टी के लोग हैं, उनको लोगों के साथ टच में रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टाइम के ऊपर हमको इंटरनल डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए। यानी जब हम लोगों के सामने दिखें तो हम सेवा दल के वॉरियर के तौर पे दिखें, जो बेहद डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। हमको कोई डिसिप्लिन करने के लिए नहीं आता है, जरूरत नहीं है उसकी। हम अपना डिसिप्लिन खुद अपने पे लागू करते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है, और हम मानवतावादी है, हम संवेदनशील हैं मानवों के लिए, हर देशवासी के लिए। इसलिए हमारा ये जो डिसिप्लिन है वो बना के रखना चाहिए। अभी हमको पद पे ज्यादा ध्यान ना देके इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए कि मैं क्या ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं, ताकि मेरा सम्मान भी बढ़े, मेरा योगदान भी बढ़े, मेरा आत्मसम्मान बढ़े, मैं अपनी नजरों में जो है एक बेहतर इंसान साबित हो सकूं, और मैं सही मायनों में एक सच्चा सेवा दल का साथी कार्यकर्ता बन सकूं। और सोशल मीडिया में होने की वजह से मेरे पास एक टूल है, एक औजार है कि मेरी अगर सोच बहुत पॉजिटिव होगी तो मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, मेरी हर ट्वीट, मेरा हर फेसबुक जो मैसेज है, या मैं जो भी मैसेज डालता हूँ, उसमें मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, मेरा सोचने का तरीका रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए मुझको अपनी ये पॉजिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। तो ये मेरी कुछ जो है वो सजेशंस हैं आखिर में, और मैं इसके साथ ही इनवाइट करूंगा क्वेश्चंस या कुछ और इसके बारे में जोड़ने की जरूरत है तो किरण जी में काइंडली यू नो take from here to facilitate it. Hi, sir. This is Dipali here. Hi, good morning. Thank you for a very enriching, conversation with you, and to sort of reinstate and sort of recalibrate our minds in this situation to what we actually stand for. I have a question, sir. I mean, given that this is the sort of rich history of our party. The role of Seva Dal in this entire history of us has been traditionally apolitical. It has not really been the political, except the holder of the ideology, or the people that take the ideology down. In our social media cell, my question to you is, what should be the strategy for the social media cell to be adopted in their various forums, whether it's the Facebook, whether it's on Twitter or whatever? Because I see, and in the past, I've seen that we at Seva Dal are constantly emulating what either INC does, or create political hashtags and political laden stuff in our communication. Is that the way that Seva Dal should be going, or should there be another strategy for Seva Dal's social media communications? Your suggestion, sir. Hello. There seems to be a little bit of connection issue with Sureshji. Sureshji, are you there? The video seems to be. I think his video. My suggestion is everybody can switch on your video, just for we can now that the session is over, and please raise your hands, or you can put it on a message if you want to ask a question. Yeah, sorry, I have lost the connection. I don't know why. Yes, sir. Did you hear Dipali's question? Yes, or, I heard. Okay. I was asking, should I answer one by one, right? Yeah, you could reflect on our question right now, and then we could start the question. Okay. Dipali ji, that is the major problem I am seeing for last 2 years after coming out of JNLI. That if we become a replica of INC, then our visibility will not be there at all, because there are bigger players, desperate players who can stake everything, and that is not required from us also. I don't think even INC looks at us performing this kind of role. हमारा जो आज के वक्त में जो सबसे important
कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में पे करेगा, वो मैंने सोचा, ये क्वेश्चन मुझे किरण जी ने कल रखा था कि सेवादल शुड बी सीन डिफरेंट। हम नॉन पॉलिटिकल एकदम दिखें ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसे दिखने चाहिए कि जरूरत होने पे वी कैन क्रिटिसाइज कांग्रेस पार्टी ऑल्सो। कोई पॉलिसी अगर प्रो पीपल नहीं लगती है किसी कंपल्शन में, या स्टांस ठीक नहीं लगता है, तो हमारे सेवा दल में गट्स दिखाई देने चाहिए कि हम ये कह सकें कि होल्ड ऑन, वी डोंट फुल्ली एग्री, वी विल वेट फॉर यू टू रिकंसिडर दिस। ओके, तो वो एक स्टांस हमारा जरूरी है। इसलिए हमको पीपल सेंट्रिक होने की जरूरत है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बजाय पीपल्स एक्टिविज्म जो है वो अपनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग विद सेवादल with whatever time I have besides my own professional engagements. मैंने अपना एक रोल तय कर लिया। मैं नहीं चाहता कि उसको कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति किसी नजरिए से क्रिटिक करे। वो मेरी सोच है और वो सेवादल से मैच करती है, इसलिए उससे अलाइन करके मैं उस पर काम करता हूँ। तो हम सोशल मीडिया के लोगों को भी सेवादल का जो ब्रॉड गाइडलाइन है, जो लालजी भाई ने ब्रॉड आउटलाइन पेश किया है, हमको उसके अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल एक्टिविज्म एक बात है, और पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविज्म दूसरी बात है। अगर वो करना है, देन बेटर ज्वाइन आईएनसी। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, you will not achieve here as much as you can achieve there politically, if you are politically desperate person, particularly in that kind. I agree, and that is why I would request if Kiran and Subhash would create a manual for the social media team on the social media guidelines to be adopted by Sevadal, and have that followed in principle and in toto, because we are not, and from what I have spent time at both Sevadal and with Lalji's vision, and the inputs that you have given, sir, and we have gathered, we are not supposed to be doing political, we're not political trolls or political warriors. What we are is Sevadal, and we have failed to conquer the great work that Sevadal is doing on the ground and communicating that as a brand. This morning I had forwarded to Kiran a small graphic that I got about RSS during the time of COVID, and they communicate their work so effectively. However, Sevadal has probably done 3 times more than that. But the communication has gone out in the public that RSS is doing more work. It's because we have failed to actually communicate the work that we are doing. Secondly, we have spent all our time in the last 1.5 years that we've had the social media team running behind political agendas. Election ho ya Narendra Modi ko naam bulao, ya whatever the trend INC is doing or INC voluntary groups are doing, we are copy pasting and sending that, but there's no Sevadal in it, and that is what is required, Kiran, Subhash, for you to create a manual, because our team does not have that guideline with them. They don't have that guideline, and therefore they're doing this. We cannot, Yeah, I lost your voice again. I think okay, Kiranji. Okay, that's a Sureshji. That's a larger topic, which we will discuss separately. Anyone of Christopher? Hello. Yeah, Kiran, you can take the questions on chat one by one. Yeah. Christopher, but because Kiranji, because this is a larger question, my feeling about it is terribly important. Unless we work on ourselves, as social media person, because we are the front face of the organization, interacting every day. So we have to work on ourselves about it, whether we want to be a political activist or a social worker of Congress party in Sevadal. So conducting the ideology of party and Sevadal, but not as a Congress activist, but a Sevadal activist. This needs to be resolved inside the heart first. जब तक हमको खुद क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, तब तक हम कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा ही लाइन जो है क्रॉस करते रहेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, 10 साल मैंने JNLI के साथ काम किया। I have a very strong political tendencies, okay,
लेकिन उन 10 साल में मैंने अपने आप को बताया कि मेरा रोल क्या है, इसलिए मैंने कभी पॉलिटिकल एक्टिविज्म में हिस्सा नहीं लिया। सेवरल पीपल डिसलाइक सेवरल थिंग्स, डोंट केयर मेरा रोल क्या है, मेरा बेस्ट कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के लिए यही होगा। उस वक्त मैंने कहा अपने आप को जो कि मैं उनके नॉर्म्स को सिंसियरली एग्जीक्यूट करूं, एंड दैट डजंट सीक माय पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ऐसे ही सोशल सेवा दल में जो काम करते हैं साथी, उनसे पॉलिटिकल एक्टिविज्म आइडियोलॉजिकल है, लेकिन एक कैंडिडेट के साथ में जाके, किसी एमएलए के साथ में जाके हम 24 घंटे वहां पे काम करते हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है, ये सेवा दल के साथी को मुझे नहीं लगता कि शोभा भी देता है। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। Yes, sir. So actually, before we open the people's questions, I am exposed to most of the work that we do and also the grassroots thinking of Sevadal. I can probably, as you know, going with your sessions today, how we relate to Sevadal. Sevadal is an organization which guards the Congress ideology, the ideology that our founders gave us, you know, when the independent India. So that is one of the major, I would say, the DNA of Sevadal, while serving the people. Now, while serving the people, also as a product, generate leaders who could probably politically, can be given off to the political wing of Congress. But the predominant work is to focus on the ideology of India, the idea around the idea of India, and serve the people. Now, however, we also need to give a little bit of credit to the current situation, the status of Sevadal. If you really see, way back prior to independence and during post-independence, Sevadal has been upfront, working for Congress, supporting the Congress leaders, the families, post-independence, reforming in India. In maybe 70s to 90s, there has been a significant, I would say, dilution of the entire Sevadal organization and all of that. So, at this point in time, there is a serious effort to rebuild the organization with whatever is left over, and then I think we will have to, transition once we have some kind of a strength, transition to the ideological and the social service aspect of Seva. So I just wanted to, we have to keep some kind of a faith. We have to keep working at it, and I'm sure over the period of next 2-3 years, we will transform this organization to what exactly that we are, we are talking about. I just wanted to share that. Okay. Can we take questions? Yeah, Christopher, you had a question. Can you please ask the question? And anybody else who has a question, please send a message or a chat on the chat that you want to ask a question. Christopher? No, Kiranji, I got my answer in the several discussions you all were having now. So Okay. I think the point what I was raising is I got the answer for it. Can you quick paraphrase it so that everybody understands that? Sorry, I just wanted to, while Maybe somebody else. I would like to prefer asking something else if you permit. Yeah, go ahead. Okay, just I was wondering like सुरेश जी हम अभी बात कर रहे थे कि like सेवादल का जो working है, working with the MLAs or INC kind of work or helping them, ये तो है ही सर, लेकिन हम देखेंगे कि maximum as of today सेवादल is into working with INC leaders. So इसको हम separate, ठीक है हम समझते हैं आज की हम we are into transition की नहीं है, तो फिर वो वहां तक आना हमें थोड़ा टाइम लगेगा जब हम आइडियोलॉजी के लिए एक्चुअली काम करेंगे. बट मे बी एज ऑफ टुडे हम ऐसा क्या कर सकते हैं व्हेन वी रीच टू द पब्लिक, और व्हाट इज दैट वी कैन डिलीवर टू देम और गिव इट टू देम, so that they would attach with Sevadal, or they know yes Sevadal is doing this kind of thing as of today. Because हम जब जाते हैं तो हम एज अ आईएनसी या कांग्रेस ही बोलते हैं सब कुछ, राइट, बट एज अ सेवादल हम क्या करें एज ऑफ टुडे कि वो मैसेज पहुंचे. नो डाउट बहुत सारी चीजों में हम कर रहे हैं, लेकिन मे बी मैक्सिमम एट
ग्राउंड लेवल हम देखेंगे तो एक एमएलए के साथ में ही हम चल रहे हैं, देखा गया तो इस चीज को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं मैसेज, या कि सेवा दल ये क्या डिलीवर करना चाहता है, या सेवा दल का एक्चुअल आइडियोलॉजी या एक्चुअल वर्क या फिर उसका कार्यकर्ता क्या करता है, ये हम कैसे मैसेज पूरे अंदर तक पहुंचा सके। आई थिंक सुरेश जी का लिंक वीक है एक्चुअली. while सुरेश जी कम्स बैक, वन ऑफ से जो हमारा जो सेवा दली का काम है, वो सेवा दली का काम है जो यू नो टू आइडियोलॉजिकली वर्क and also to provide the service to people, right? So now the means जो होता है, that means could be through the through a leader who can support us, through a wealthy person who can support us, or maybe the whole society who can support us. However, लेकिन we will have to keep in mind कि मैं सेवा दल में सेवा दल से हूँ, सेवा दल का साथी हूँ. So that message by symbolically, by uniform, or verbally by representing ourselves as seva dal person is important at this point in time. A lot of people, what we have seen, again it is a transition, they kind of change their identity based on where they are. So we will have to reduce that, do low lessen that, and increase our visibility by showcasing that we are seva dal. We verbally say that, we wear our uniforms, we kind of express that as that we are seva. I just wanted to. I think Suresh ji is having problem with connectivity. Appears like that. Kiran, just on that same point that you were talking, I mean, we were talking about looking at this social media or communication, all our media being towards Seva Dal, and we had requested if you could come up with this Seva Dal guideline. Can we have a time frame when this can be ready and given to everybody as the guideline for that has to be followed? Because we've been talking about it for a year and a half. About a week's time, Dipali. So within 7 days, I think we can work out guidelines. Yeah, if you can circulate it to everybody for their inputs and suggestions, and then freeze upon that, that would be good. Right. Yeah. So before that 7 days, we'll complete that feedback and review and everything. Yeah. Maybe we can have a calendar of sorts, like which sort of gives an indication that, let's say that this is January, then our social media theme could be around the Republic or whatever. I mean, it could be a particular festival, and therefore, like we did the blood donation drive or whatever. So that we can build a thematic way of for the social media. It should be a comprehensive manual. That's what I'm trying to say. Yeah. So one of immediate thing this May 5th is our Founders Day, Hardikar's birth Jayanti. So that is one more thing that we should look at. How do we get the Hardikar Jayanti to be, kind of aware? Yeah, that's an immediate thing. I'm saying but this should become a part of our Bible. The social media Bible that we have, which says that these are the occasions, these are the kind of creatives, this is the kind of videos, this is the kind of tweets, this is the kind of hashtags that we should be adopting. So it becomes a Bible, and then everything else is, as things happen, we can do. But let's have that as our and like Suresh said, those that want to do political activism, then perhaps science is a better place for them. And those that want to remain with the Seva Dal as this thing, then Seva Dal Bible should be followed in toto. That's that's something that we should clearly communicate. That in that. Thanks. Thank you very much. Any other questions, guys, before we conclude this call? हाँ, बालेश्वर जी, क्या है? Okay, 7 तारीख, ठीक है, okay. Excuse me, hello sir, this is Siddharth Pandey. हाँ, सिद्धार्थ जी, बात कीजिए. Sir, I know we are here to represent what Seva Dal is doing onto the ground, and what the people were thinking that we can influence people and helping the people. Your audio is breaking, Siddharth ji.
Okay, actually a network issue. Yeah. I can hear him. नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही, सिद्धार्थ प्लीज गो ऑन. I can hear him. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो सेवा दल है वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो भी काम हो रहे हैं उस ग्राउंड लेवल को हम रिफ्लेक्ट कर सकें. लेकिन एज बीन एज थॉट कि अगर हम ये सोचें कि ये अगर अभी पॉसिबल हो जाए तुरंत, तो मेरे को ऐसा नजर नहीं आता. बिकॉज लास्ट 3 और 4 मंथ से मैं खुद काम कर रहा हूँ इसमें. लोगों को जो आते हैं डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ. बट आई डिडंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन टू सेवा दल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. So this is the main problem. Otherwise, I can ensure you, if once this thing happens, it will take around 100 of tweets per day for Sevadal Madhya Pradesh only. See, Hello. there is an effort to create something called a Seva Net. सेवा नेट जो है ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स है जो नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, जो इंफॉर्मेशन जो एक्टिविटीज हो रहा है उसके थ्रू शेयर करना, कनेक्शन करना, आपको बात करना, वो सब है. नाउ अनफॉर्चुनेटली सम स्टेट्स आर वेरी गुड एट इट, सम स्टेट्स आर लैगिंग बिहाइंड. So this by May 15th, we want to complete this entire activity throughout India. So for example, Madhya Pradesh is, I would say if you trace the entire state levels, Madhya Pradesh is at the lowest level. Kerala is at the very good level. Chhattisgarh is at the best level. Himachal Pradesh is okay, moderate like that. So my suggestion to you, Siddharthji, is you should work closely with the communication coordinator and the state chief coordinator, state organization of Madhya Pradesh and me to be part of all that SevaNet groups, so that you can also motivate लोगों को बोल सकते हैं कि देखो आपने मुझे दिया था ना, मैंने अपने इसको इसका ऐसा रिजल्ट दिया है, and they also communicate. So you can do that through SevaNet. Sir, actually I started searching out the people by my own Sevadal president, but there is not too much response. There is no response from their side. Anyway, so that we can take it offline. Okay, sir. Thank you. Anybody? I think Saket Khandari ji. Yes, good afternoon to everyone. आपका वीडियो ऑन कर लीजिए तो सबको आप सब आपको देख सकते हैं. Thank you. Hello, good afternoon to everyone. बात कीजिए. हाँ सर, कुछ points. One small request, as much as possible, we could keep the questions for this session, and also fine, you can throw the other questions also. Just wanted to go ahead. Sir, I want to ask regarding social media only. सर अभी जैसा मेरे को अभी लगा है इसमें सोशल मीडिया में जो हमें काम करना है, जो ब्रांडिंग करनी है, उसके पॉइंट्स जो 3 है मेन की आइडियोलॉजी जो सेवादल की है उसे हमें फैलाना है. दूसरा जो सोशल मीडिया के ग्राउंड लेवल से या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जो काम हो रहे हैं उन्हें हमें करना है. फिर जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो सेवादल के रिगार्डिंग है, जैसे हार्डी जी का जन्म दिवस है 7 मई को, और भी जो हमारा फाउंडेशन की डेट्स है इन पे हमें काम करना है सारी डेट्स वाइज. लेकिन सर इसमें ये था केवल क्या ब्रांडिंग करने के लिए इतना इनफ होगा सर? और जब इलेक्शंस वगैरह होंगी तो उस टाइम पे सेवादल के जो वर्कर्स ने काम किया हमें उसे हाईलाइट करना है कि ये उसको भी प्रमोट करेंगे जो हमारा कैंडिडेट है कांग्रेस का. तो सोशल मीडिया का सर रोल पे आप लोग इसमें भी थोड़ा हमें बताइएगा कि हमने उसमें कैसे काम करना है. दूसरा इसमें मेरा एक क्रिटिसिज्म था कि ब्रांडिंग सर केवल इन 3 पॉइंट्स पे पॉसिबल उतनी अच्छी नहीं होगी सर. एक मेरा ये था इसमें क्रिटिसिज्म. देखिए थोड़ा इसमें सर वो था कि ब्रांडिंग के लिए थोड़ा सा जो यूथ है उसको केवल सेवादल की आइडियोलॉजी से और सेवादल के जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने आज यहाँ पे मास्क करे हैं और हमने फूड प्रोवाइड करवाया है. तो और जो इम्पोर्टेंट सेवादल की डेट्स है उसके साथ जो अभी यूथ है वो इतना सर अट्रैक्ट नहीं होगा. ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है. और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया में अगर सेवादल को और आगे ले जाना है सर और इसकी पहचान बनानी, थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना पड़ेगा. अगर हम आईएनसी के साथ भी नहीं करते हैं उतना ज्यादा, अपने को अलग से स्टैंड आउट करना, हमें सेवादल की ब्रांडिंग के लिए
कुछ चमक-धमक कह लूँ मैं, कुछ भी अलग थोड़ा-सा हमें करना पड़ेगा जिससे यूथ अट्रैक्ट हो, जो यूज़र सोशल मीडिया पे है, किसी भी एज ग्रुप का हो। केवल इस बेसिस पे सर ये है कि उतना अच्छा हम नहीं कर पाएँगे, जो मेरी थिंकिंग है। थोड़ा इसमें हम सब मिलके ठीक है, वर्क करें कि आपने कैसे और अच्छा-सा हो पाए। तो क्या आपने आपका बात दोहराए। देखिए जो सेवा जो बात हुई है, सेवा दल एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिसिप्लिन है, वो आइडियोलॉजिकल को गार्ड करना, उसको फैलाना। दूसरा है कि जो लोगों का सेवा करना और खुद का जो लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाना, वो एक मेजर ध्येय है। तो उसको लोगों को सेवा क्या-क्या है? सो आप विद्या में हैं, राइट, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट, तो जो अलग-अलग जो सेवा का कार्य आ रही हैं और उसको इंस्टीट्यूशनली जो करना है वो आगे आएगा, राइट। सो विद्या के लिए अलग विंग होगा, हेल्थ के लिए एक, वो सर्विस ओरिएंटेड है। दूसरा जो आइडियोलॉजिकल है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा हर महीने संडे हमारा ध्वजवंदन होता है यस ना। ध्वजवंदन क्या है? अब अभी वो ये देखते हैं, आइडियोलॉजिकल का एक पार्ट है वो राष्ट्र निर्माण का काम। सो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, नेतृत्व निर्माण। सो सेवा दल आप देखते हैं तो 3 विंग में है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, नेतृत्व निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण का जो काम है ध्वजवंदन। ध्वजवंदन क्या है? ध्वजवंदन है कि ये जो है हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं लास्ट संडे ऑफ द मंथ, वो पब्लिक प्लेसेस में हम तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा को मान देते हैं। वो प्रोग्राम में कोई उधर का जो अच्छा जो व्यक्ति है, जो फ्रीडम फाइटर हो सकता है, कोई गरीबों के साथ काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको मान देते हैं और सेवा दल का यूनिफॉर्म में रहते हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें प्रोग्राम में अलग-अलग आप डाल सकते हैं, बच्चों का कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, वो सब कर, मतलब ये राष्ट्र निर्माण का काम है, राइट। तो ऐसे अलग-अलग हमारा एक प्रोग्राम आता रहेगा, जो संगठन के दौरान इसको प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया क्या कर सकते हैं कि वो जो ध्वजवंदन है, ध्वजवंदन को हम एक अच्छा सा स्टोरी बनाकर हम प्रसारित कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम क्यों ध्वजवंदन कर रहे हैं। ध्वजवंदन ऐसा है कि सिर्फ एक राष्ट्र का ध्वज ये नहीं कर रहे, उसमें एक मीनिंग है कि उसमें हमें तिरंगा को मान दे रहे हैं। तिरंगा में बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो जो इंडिया इज a country which respects unity in diversity, उसका मान दे रहे हैं, ऐसा। तो ऐसे प्रोग्राम आते जाएगा आगे आगे जाके, लेकिन अभी हमें सोशल मीडिया के जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हम स्ट्रेंथ करते जाएंगे, जब भी संगठन बढ़ेगा तो अभी वो उसका एक्टिविटीज भी जाते जाएगा। इट मे नॉट बी दैट आज ही सब है, आगे जाकर बढ़ते जाएगा। साईपुत्र साल्वे जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। साल्वे जी, हाँ सर, एक मिनट। आपका हाथ ऊपर था। और कोई क्वेश्चन या कुछ रिफ्लेक्ट करना चाहता है तो बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ साल्वे जी बताइए। हाँ किरण जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बात हेलो। कीजिए। सब हाँ, लोग मेरा जिसमें क्वेश्चन वही था अभी जो इन्होंने पूछ लिया, जिसका ये था कि पहली बात तो मुझे ये समझ में आ रहा है इतने टाइम से कि वी आर इनटू अ रेस, ठीक है, एंड वी वांट टू विन समवेयर। हेलो। हाँ बात कीजिए। हाँ, तो ऐसा है कि ट्विटर पे हमको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फेसबुक पे हमको फॉलोअर्स बनाने हैं, तो उस टाइप का कंटेंट हमको आईएनसी से मिल रहा है, या वी आर अपोजिंग बीजेपी,